इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends. Entire team of Franchise India welcome all of you to our webinar series under Business Opportunity over Chai. This is a 45-minute session where we are talking about the business opportunity we have got for all of you. Once we'll complete the presentation from the brand side, we'll move towards our panel discussion. Hence, we request all of you to use question and answer box to share your suggestion, feedback, as well as queries. Every query will take during our panel discussion. We welcome management team of Franchise India for this particular webinar. Gaurav sir and Sonia ma'am both hosting this webinar. The business opportunity which we got for you is London Slash, the brand which was established in UK, and Mr. Yogender has now brought this particular distribution opportunity to Indian market and for all our investors in India. And today we invite him to talk about this distribution opportunity. Thank you so much Yogender ji for joining us today. आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं आपका, and we are ready with the presentation. हेलो कृपया ध्यान दें, गौरव जी, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो बोर्डिंग गेट पर बैठे हुए सामाजिक गौरव जी, सम्मान करें। कृपया अपना मास्क हर समय रखें। आवाज आ रही है आपको मेरी? यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। So we can hear you. We can hear you, sir. जी जी जी। First of all, I would like to thank Franchise India for giving me another opportunity to have a penetration across India. Earlier, we are already associated for the Imperial Blue and the Blenders Pride, and now we are coming up with a brand named as London Slush. This brand, London Slush, belongs to Liverpool, UK, and we have patented the formula for that thing. So it is a London Slush is originated from the Liverpool, UK, and in UK the slush market is already 32 million pound per annum, and it is a new opportunity in the Indian market. So right now we can say the first to launch a branded slush into the Indian market, and this is the very marginable product for that retail segment. So I think it is a win-win situation for the distributors, retailers, and company. Next slide.
So our target market is the kids and the youngsters who are aged between 5 to 25 years of age. And we are planning to penetrate pan India, but right now we are started with major cities, or we can say top cities. So the target segment would be the coffee shop, bakery shops, and food joints. Next. So we are just want a distribution network for 10 cities in the first year. So 10 cities would be the metro cities, and those distributors are associated with the different retail outlets. So we are assigning distributors on city basis, not a state basis, like for the Chandigarh, for the Lucknow, or for Hyderabad. So it be on city basis rather than the state basis. Next slide, please. The investment would be around 30 lakh, and the margin, the sales commission is 20%. So I would like to add up here that the sales, it totally depend upon a sale of a retail outlet. So we are providing this machine worth of 1,80,000 worth of machines free of cost to the retail outlet, and a glass of 250 ml cost them around rupees 20. And the selling price, what we are selling right now at Delhi, is 60 rupees. So the glass of slush in UK or America would be cost around 150 rupees in rupees. So the margin is very high as compared to the different available drinks into the market. So it is a win-win situation for both the things. So it is a 20% sales commission over the sale, over the billing value. The projection will be 7 to 9 lakh, which we are doing on a single retail outlet currently in Ghaziabad. We have our own outlet, and in the coming 2 or 3 months, we are planning to have 10 more outlets in the cities. So first, we are going trial on our end, so that our own satisfaction, we are able to launch it on the pan-India basis. So it is a step-by-step process. That's why we are declaring that we are going to start on the month of January. From 1st January, we are able to launch on pan-India basis. Next slide, please. So as I mentioned earlier, that we are the only brand in the slush category in India. That name is Lana Slush. We already have a machine on the European standards. These machines we are importing from the Italy. So these are the best of the machines in this category. Syrup concentrate is already as per the FDA regulations and as per the European Union standards. So designs of all the things, whether it's a glass, lid, or anything, what we are using right now, so it is as per the international standards. Next slide, please. So as I told you earlier that we are going to launch in the month of January. So it is the time we are going to freeze a territory so that we can plan accordingly regarding the sales, regarding operations, everything. So we want only 10 distributors in 10 cities in a first phase. So this is the I think this we have completed the presentation right here. Archana? Yes, sir. Thank you, Yugendraji. I think we need to discuss a little bit on the business model. I think broadly you have talked about the investment. Yugendraji, would you want to explain, how the brand started, where all currently it is operating, and little bit on the journey so far? And I saw this started only in this year 2021. And I will also request if you can elaborate a little bit on the investment. So starting with, maybe your journey so far, the current presence of the brand, and then we can go ahead discussing on the business model. The first thing that what we have started, we started in the early month of January this year. So initially we imported the syrup from UK. So because of Corona and everything, it takes a long time to get initiated the things. So we started to procure the material from UK itself, and also the machines we also imported from there only. So we started the kiosk in, I think, 2 months back. So after getting a response from the feedback that how they respond to the flavor, how they respond to the drink.
So we are confident enough. Okay, this is acceptable among the Indian consumers. So this is the thing that the every formulation, everything is standardized as per the European standards. And the second thing आपने जो कहा investment के regarding, तो investment जो हमने 30 लाख investment बोला है, उसमें 27 लाख refundable है, उसमें हम लोग लीज पे देंगे उनको machines. एक मशीन जिसकी वर्थ 1,80,000 है, वो हम 15 मशीन्स उनको अलग अलग पॉइंट्स पे लगाएंगे और वो मशीन्स हम रिटेल आउटलेट को बहुत मिनिमम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, जिनके यहाँ ह्यूज पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमारा और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का पर्पस है कि जितना हम लोग सिर्फ सेल आउट करें वो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी होगी रादर देन उसके मशीन्स के रिगार्डिंग. Would you want to still explain further? ये हम retail, are we discussing about a retail format? ये एक London Slush का retail outlet बनेगा या? नहीं मैम, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर्म कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने चंडीगढ़ में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और उसमें जो भी कोई मॉल्स हैं या फूड कोर्ट्स हैं, वहाँ हमने 15 मशीन्स प्लेस किए हैं जिनके ऑलरेडी कियोस्क चल रहे हैं. तो उनको ऑलरेडी वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एक एडिशनल इनकम मिलेगी इससे. और हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होगा उनका रोल होगा कि वो उनको सिर्फ प्रोवाइड करेंगे और हम लोग उनके यहाँ मशीन्स मार्केटिंग वगैरह करेंगे. तो एक तरह से उनको एक्स्ट्रा इनकम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी उनकी एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट है. तो इसमें कोई रिटेल आउटलेट हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट को ही एडअप कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन्स में. एंड इसमें जो आपने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है, इसमें कितनी मशीन्स डिप्लॉय होंगी? मैम इसमें 15 मशीन्स होंगी डिप्लॉयड, यानी 15 प्लेसेस पे हम लोग लगाएंगे. तो उसमें अभी इनिशियल फेज है, एक बार हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी. बाकी जितनी मशीन्स होंगी उतना अपने को प्रॉफिट ज्यादा आएगा. तो अभी इनिशियल फेज पे हम उसको 15 मशीन्स अलग अलग जगह जो भी हमें को सुटेबल लगेगा वहाँ प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे एडअप करेंगे हम चीजों को. And in 15 machines का Yogendra ji, we already have a visibility, or would a prospective partner would have visibility on where the installations would take place? And initially we are targeting food courts in different malls. First phase. Second phase, college canteens, management institute or any academic universities. तो basically target customers youngster, तो हम लोग एक बार उन्हीं को target कर रहे हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं या अच्छी चीजें प्रेफर करते हैं. And इसमें इन्वेंट्री कौन होल्ड करेंगे योगेंद्र जी? इज द इन्वेंट्री हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेंट्री आप होल्ड करेंगे और आप ही आगे डिप्लॉय करेंगे? नहीं मैम, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही पूरा इन्वेंट्री होल्ड अप कराएंगे. डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पूरा कोलेटरल्स होंगे, स्पेयर पार्ट्स होंगे, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम टेक्निकल टू मार्केटिंग, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग इक्विप करके देंगे. फील्ड पे हम लोग रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, सारी चीजें जो भी बैक एंड है या फ्रंट एंड है या टेक्नीशियन है, वो सारी चीजें हमारी टीम हैंडल करेगी. उनको वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है पार्ट सिर्फ वो टेक केयर करना है. एंड जो भी डिप्लॉयमेंट है उसकी सारी मार्केटिंग या पॉइंट ऑफ सेल्स आप डिसाइड करेंगे और आप असिस्ट करेंगे, और ये फ्रेंचाइज और आई वुड से डिस्ट्रीब्यूटर का रोल रहता है? नहीं मैम, वैसे तो मिलके करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं तो हमको मतलब हम उसे गाइड कर सकते हैं, हम लोग मिलके कर सकते हैं कि हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जहाँ फुटफॉल अच्छा है, जो ऑलरेडी उसका लोकेशन अच्छी है, जहाँ से एक ब्रांड इमेज डेवलप होती है. तो उनको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे इन चीजों को. और इसमें अगर कोई पार्टनर चाहता है स्मॉल इन्वेंट्री से शुरू करना, इज दैट आल्सो अ पॉसिबिलिटी? बिकॉज़ आपने जो बात की है, वी हैव टॉक्ड अबाउट 15 मशीन्स which needs to be taken by any distributor. Are we looking at inventory which can even maybe start with a small inventory and then gradually this inventory can raise to the optimum level? हाँ, ये भी कर सकते हैं हम लोग. ऐसा नहीं है कि 15 से स्टार्ट करना है. मैंने आपको बताया कि इस पे पोटेंशियल तो जितना आप मशीन्स जितनी जगह डिप्लॉयड करेंगे उतना पोटेंशियल आता है. तो इसलिए इसमें जितनी मशीन्स होंगी उतना अच्छा रहेगा. तो अगर कम से चाहे तो कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. And friends, I do see some of you have started raising your hands. I was impressed because we'll not be able to unmute the webinar. All participants who are there in the webinar can use the Q&A box which you see down, and you can put your questions and we'll take it up with Yogendra ji. So Yogendra ji, एक चीज और जो मैं समझना चाहती थी, what are the markets where you currently see there is a big demand आ रही है आपको? कौन सी markets आपने भी पोटेंशियल के हिसाब से शॉर्टलिस्ट की हुई है या प्रायोरिटी के हिसाब से आपने शॉर्टलिस्ट की हुई है? मैम मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोगों ने आपका इवेंट हुआ था एक GW मैरियट में,
वहाँ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के लिए कियोस्क पे लगाया था, सिर्फ केवल ये देखने के लिए कि लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप यकीन मानिए कि 350 से ऊपर मेरे पास क्वेरीज आई थी, और उसमें बरिस्ता से लेके और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अभी नाम नहीं बता रहा मैं, मतलब अभी भी लोग काफ़ी हैं जो जुड़ना चाहते हैं चीज़ में। तो मेरे को ये चीज़ें देख के लगता है कि अब हम लोगों को सिर्फ केवल एक नेटवर्किंग बेस क्रिएट करना है, जो एंड है यूजर जो लेना चाहता है वो रेडी है लेने के लिए। And इससे potential income क्या discuss कर सकते हैं केंद्र जी? If I want to understand, क्या potential income generation हो सकता है एक मशीन को डिप्लॉय करने का, और कितना टाइम लगता है उसको ऑप्टिमम लेवल पे आने का? And based on your own study research that you have done and the current deployment of machines, एक मशीन का थ्रूपुट क्या होता है, क्या एफिशिएंसी दे सकती है, और क्या इनकम जनरेशन पॉसिबल है? And if you can illustrate that with also some examples. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा जी जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी जी मैम, एक जो मशीन लगती है उसका जो कंजम्पशन होता है, तो उसमें एक दिन में, अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो एक दिन में हम लोग 50 to 60 ग्लासेस सेल आउट कर लेते हैं फ्रॉम वन मशीन। तो इसमें क्या मतलब है कि एक जो हम लोगों का अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो हम लोग 60 रुपये का एक ग्लास सेल आउट करते हैं प्रेजेंटली। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 का मतलब हो गया लगभग 3600 का हम लोग अभी इनिशियली एक पॉइंट से सेल आउट कर रहे हैं। तो उसमें अभी तो एक मशीन है, उसकी मतलब मशीन्स का अभी जो आप कह सकते हैं जो प्लेसमेंट है अभी वो नया है, सिर्फ मैंने अगस्त में काम शुरू किया, फुटफॉल इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग इजीली 150 ग्लासेस तक सेल आउट कर सकते हैं एक मशीन से, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर मैं उधर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ तो आप नॉर्थ में देखो तो अभी थोड़ा सा सीजन डाउनफॉल पे है, अदरवाइज अगर आप बेंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें या बॉम्बे की बात करें तो वो सीजन एक जैसे रहते हैं। तो एक मशीन इजीली 150 to 200 के आसपास वो ग्लासेस निकाल सकती है, उसमें कोई वो नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से उसको अच्छा मार्जिन मिल जाता है रिटेल को और डिस्ट्रीब्यूटर को भी। इसमें स्प्लिट की भी बात कर सकते हैं योगेंद्र जी, बिकॉज आई वाज अबाउट टू आस्क दैट क्वेश्चन एंड आई सी अंकुर तिवारी जी ही इज आल्सो वांटिंग टू अंडरस्टैंड जो भी हमारा मार्जिन स्ट्रक्चर है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर के बीच में क्या स्प्लिट रहता है, एक क्वेश्चन। एंड दूसरा, आई वुड आल्सो लाइक यू टू मे बी एक्सटेंड और एक्सप्लेन हाउ द रेवेन्यू सोर्सेज वर्क। So एक आपका is so typically in a business like that service भी एक आपका revenue source होता है जहाँ पे servicing of machines, is that something which is included? Second आपका supply chain रहता है जहाँ पे सारा raw material आप supply करते हैं। So अगर आप revenue sources भी थोड़ा explain कर पाएं, and the second is a split between the distributor and the retailer. मैम उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो हमने मार्जिन दिया हुआ है वो बिलिंग पे है। एक जो केन है उसकी कॉस्टिंग, एक केन 5 लीटर की केन होती है, उसकी कॉस्टिंग 2000 रुपीज पड़ती है। वो 2000 में उसका जो पैकेजिंग वगैरह है, जैसे ग्लासेस है, लीड है, वो सब इंक्लूडेड है 2000 में। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं वो केन के बेसिस पे करते हैं, उनको भी जो मार्जिन कैलकुलेट होगा, हमारी अगर 2000 की केन है तो उसमें 20% लेस होकर उनको बिलिंग होगी वो केन, और वो 2000 में आगे रिटेल आउटलेट को बिलिंग करेंगे उस केन की। जो इसमें हम लोग पेमेंट्स रखेंगे वो ऑलरेडी उनसे एडवांस बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके आउटलेट पे। तो उसमें क्रेडिट तो हम बिल्कुल ना करेंगे, ना हम उनको एनकरेज करेंगे कि उसमें करें। तो डेली अभी जो स्टार्टिंग में हम लोगों का टारगेट होगा वो ये होगा कि डेली हम लोग 1 से 2 केन का डेली हम लोग सेल करें उस चीज को लेके। और इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि एक केन आप मान के चलिए कि 5 लीटर की केन अगर मैं बात करूँ नोएडा की, तो नोएडा में अगर आपको 10 आउटलेट आपने लगा रखे हैं, तो आपने एक लड़का रखा हुआ है, तो हार्डली उसका 200 रुपये का शायद तेल लगेगा वो 10 केन को पहुंचाने के लिए। तो इसमें जो भी आउटवर्ड है उसमें इतना ज़्यादा कोई नहीं है, और जो भी रेट है जो मैं उनको रेट में बिलिंग कर रहा हूँ वो सारा FOR है, जो भी उनका पॉइंट होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होगा वहां तक पहुंच का होगा। और इसमें कोई ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 500-600 स्क्वायर फीट स्पेस सफिशिएंट होती है उसके लिए, तो उसमें काम हो सकता है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन था स्प्लिट के ऊपर था, उसके ऊपर भी अगर आप लेना चाहते हैं, दैट क्वेश्चन वाज ऑन द स्प्लिट बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द पार्टनर। मैम स्प्लिट में समझा नहीं, इसमें स्प्लिट का क्या मतलब?
एक तो आपका रिटेलर होगा, जो भी बिजनेस आता है एक हाँ जी। रिटेल पॉइंट ऑफ सेल्स में, जी तो उसमें शेयर क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर का? व्हाट इज रिटेन्ड बाय दैट पॉइंट ऑफ सेल्स एंड व्हाट इज रिटेन्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर? मैम बताया ना मैंने, 20% मार्जिन है डिस्ट्रीब्यूटर का, जो भी एमआरपी है उसके 20% लेस पे हम उनको बिलिंग करेंगे। तो जैसे 2000 रुपीज की केन है तो उसका 20% मतलब 400 रुपीज लेस पे हम उनको बिलिंग करेंगे, वो 2000 पे आगे उसको देंगे। और जो रिटेलर कमाएगा वो उसके 3 टाइम्स कमाएगा, उसको 20 रुपीज का एक ग्लास पड़ेगा, जो कि वो 60 से 80 तक वो सेल आउट कर सकते हैं उसको इजीली। तो एंड श्योर, जी एंड युगेंद्र जी, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में, सो एक मशीन का जो नेट बिजनेस है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऑन एन एवरेज कितना होगा? अगर हम मल्टीप्लाई करें विद नंबर ऑफ मशीन्स, जस्ट स्टार्टिंग विद वन मशीन, सो एक हाँ मैम, एवरेज एफिशिएंसी जो एक मशीन की कन्वर्टिंग टू एब्सोल्यूट रेवेन्यू नेट बिजनेस जो एक पार्टनर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनता है, वो कितना होना चाहिए मैम एवरेज? इसमें अगर हम बात करें तो एक केन की कॉस्टिंग है 2000 रुपीज। तो 2000 एक लगभग 30 केन हम लोग मान के चलते हैं कि आउटपुट पे मिनिमम लग सकते हैं। तो दैट मीन्स 30 टू 60,000 की सेल हम लोग एक मशीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी मशीन होंगी उतनी ज्यादा वो सेल हो पाएगी उस चीज में, क्योंकि And कहीं इसमें हो सकता है कम हो, कहीं हो सकता है ज्यादा हो। एंड इसमें हमारा टर्म क्या रहता है योगेंद्र जी? बिकॉज ये सारी मशीन्स लीज पे दी जाती हैं, तो जो ये एसेट है आपका, जो ये मशीन्स का है, ये आपकी बुक्स में ही रहेगा हाँ जी जी, एंड हम उसको, डेप्रिसिएशन आप शो करेंगे? हाँ तो हम उनको लीज आउट करेंगे, वो भी आगे लीज आउट करेंगे प्रॉपर्टीज को, और उसमें कोई भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। कल को अगर मान लीजिए 11 महीने का लॉक इन है, उसके बाद वो एग्जिट भी करते हैं, तो वो मशीन हमने चूंकि लीज पे दी है, तो हम एज इट इज उनको उनसे परचेज कर लेते हैं और उनका अमाउंट को उनको रिफंड कर देंगे, अगर किसी भी वजह से कोई भी रीजन से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने इसमें लीज फॉर्मेट रखा है, कोई भी बिलिंग नहीं कर रहे हैं कि हमने उनको एक बिल कर दिया है, तो इसलिए वो एक लीज बेसिस पे उनको दिया हुआ है, वो आगे लीज बेसिस पे देंगे। Okay, I think we can take up some more questions also, and we also have friends Gaurav Arora. He's heading the entire project. And Gaurav, would you want to take any questions from your end? And also, friends, I will request please use Q&A. We cannot unmute you to speak. So, जो भी आपके questions हैं, आप Q&A में डाल सकते हैं, and we'll take it up from there. Over to you, Gaurav. Thank you. So यागवेंद्र जी, ओवरऑल प्रेजेंटेशन में जो समझ में आया है कि आप 30 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसमें 15 मशीन्स रहेंगी, 27 लाख रुपए उसमें रिफंडेबल रहेगा, 3 लाख रुपए आप बोल रहे हैं आपकी प्रोसेसिंग चार्ज रहेगी या फ्रेंचाइज फीस रहेगी आपकी, राइट? हाँ जी ठीक है, तो इसमें 5 साल का Time duration to passengers shall wear mask and maintain social all times during air travel. The mask shall not Hello? जी except under यागवेंद्र जी, एग्रीमेंट रहेगा 5 साल का रहेगा। the COVID-19 protocol will result यागवेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। यागवेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए, यू आर अनम्यूट। अच्छा जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा था कि सर इसमें ओवरऑल जो बिजनेस रहेगा उसका आप एक बार जो पूरा सप्लाई चेन है वो किस तरीके से रहेगा वो हम ओवरऑल समझ गए, लेकिन अगर इसको हम स्ट्रक्चर करते हैं तो फॉर द ऑडियंस हु इज लिसनिंग टू अस एज ऑफ नाउ, उनके लिए अगर हम एक ओवरऑल इस बिजनेस मॉडल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख रुपीस आपकी फ्रेंचाइज फीस है, 27 लाख रुपीस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 5 साल का एग्रीमेंट है, 11 मंथ्स का लॉक इन है जी। इसमें आप रिटेलर्स देंगे और आप उस रिटेलर के पास मशीनरी जो जाएगी और जो सिरप जाएंगे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से जाएंगे। तो सेटिंग अप द रिटेल नेटवर्क इज नॉट गोइंग टू बी अ टास्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज गोइंग टू द कंपनी व्हिच इज टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल आपकी रिस्पांसिबिलिटी उन तक पहुंचाना और है वो उनकी रहेगी, जो डिलीवरी चार्ज रहेगा वो उन्हीं का रहेगा, राइट? जी। और जो वेयर हाउस का मेंटेनेंस का खर्चा है, वेयर हाउस की जो भी वियर एंड टियर की कॉस्ट है, ऑपरेशंस कॉस्ट है, वो किसकी रहेगी सर? डिस्ट्रीब्यूटर की रहेगी? नहीं, मशीन से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट उनके ऊपर नहीं आएगी। मशीन का पूरा जो एएमसी होता है या जो भी उसको टेक्निकल कोई ट्रबल शूटिंग होती है वो सारा हम ही लोग, हमारी टीम ही टेक केयर करेंगे। इन एडिशन टू दैट, जो वेयर हाउस मेंटेन करेगा डिस्ट्रीब्यूटर 500 स्क्वायर फीट का, उसका एक अपना रनिंग एक्सपेंस होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या जो भी वहां कंप्यूटर इंस्टॉल होगा, कार्ड होगा,
राइट, एक वेयर हाउस की अपनी 1-2 लोगों की टीम होगी, तो उसका कॉस्टिंग बेयर करेगा सर? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर बियर करेंगे उसकी कॉस्ट। वो डिस्ट्रीब्यूटर बियर करेगा। हाँ जी। इसमें कोई ऐसा मिनिमम है या कोई ऐसा सम एश्योर्ड है या कोई बिजनेस एश्योर्ड है जो हम दे रहे हैं हमारे, क्योंकि हमने बोला कि 7 से 9 लाख रुपए का एक रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, 20% के हिसाब से 1,40,000 से 1,80,000 की बिजनेस हमने प्रोजेक्ट करी है पर मंथ बेसिस पे, राइट? ऐसा मिनिमम बिजनेस है जो कंपनी की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर ये सिर्फ प्रोजेक्शन बेसिस पे रहेगा, इसमें कोई सर्टेनिटी हो सकती है? नहीं, हम लोग एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं कि इनिशियल 5 साइनअप्स के लिए हम लोग एक एमजी दे रहे हैं 4.5 लाख पर मंथ का। तो जो भी इनिशियल 5 साइनअप होंगे इनिशियली, उन लोगों को हम 4.5 लाख का पर मंथ का एमजी देंगे। तो 4.5 lakhs का 20% which means 90,000 90,000 रुपीज। राइट। लेकिन इसमें एक छोटा सा, यादवेंद्र जी, छोटा सा जो डाउट मेरे मन में आ रहा है उसको मैं आपसे समझना चाहूंगा, और ये ऑडियंस का भी रहेगा, कि सपोज आज कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपसे 27-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। सपोज आपकी सेल्स नहीं होती है टू अ लेवल ऑफ 7 lakhs और 9 lakhs, क्योंकि अल्टीमेटली रिपीट बिजनेस सिर्फ का है जिसमें मेन उनको बिजनेस आना है। तो अगर वो नहीं होता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरेस्ट कैसे सिक्योर हो रहा है सर? नहीं, इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी सिटीज को स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पर जैसे ही हम लोगों का साइन अप होगा उस सिटी के लिए, तो हम लोग रिटेल आउटलेट्स को लाइन अप करना स्टार्ट कर देंगे। हम जो उनसे फंडिंग कराएंगे या 5 लाख के अलावा जो 25 लाख वो देंगे, उससे पहले हम उसको 10 से 15 साइन अप्स ऑलरेडी कर चुके होंगे हम रिटेल आउटलेट के साथ। तो हम उसको पहले मैंने आपको बताया ना, हम लोगों को साइन अप में कोई इशू नहीं है रिटेल में। तो हम लोग अभी सिर्फ के लिए अश्योरिटी कर रहे हैं कि उस सिटी से हम लॉकअप करें, और ताकि हम उसके बाद वो साइन अप करके उन प्रॉपर्टीज के साथ फिर उनको बिलिंग कराएंगे और एग्रीमेंट करेंगे उनके साथ। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं इसमें। आपने जैसे सिटी स्पेसिफिक बोला है, अब सपोज हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी, राइट? एंड वी हैव गॉट लॉट ऑफ माइक्रो मार्केट्स, वी हैव गॉट लॉट ऑफ मैक्रो मार्केट्स, मॉल्स, राइट? एंड वी हैव गॉट हाई स्ट्रीट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। तो इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई पेरिफेरी मार्ग है कि उसको 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एरिया मिलेगा, या फिर आप उसमें नंबर ऑफ आउटलेट्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे एक्सक्लूसिविटी डिस्ट्रीब्यूटर की, कि 15 हो गए तो अगले 15 के लिए नया डिस्ट्रीब्यूटर होगा? नहीं, इसमें देखिए सब कुछ होता है इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर, कि हम इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं है सिटी के हिसाब से। बेसिकली हम लोग 15 मशीन प्लेस करेंगे, वो हो सकता है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में आ जाए, या हो सकता है कि पूरी सिटी में आ जाए। तो उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग फेसेस के हिसाब से चल रहे हैं कि 15 मशीन हमने लगा दी, उसके बाद हमको बताएंगे कि सर इसमें पोटेंशियल और आ रहा है, अगर आप बढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर हमें कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसमें एक री इन्वेस्टमेंट उनको करना रहेगा 1.8 लाख रुपीस पर मशीन के हिसाब से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी मशीन बढ़ेंगे। और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ही हर बारी आप चार्ज करेंगे उनसे? हाँ जी, बिल्कुल, राइट। तो सपोज हम ये बात कर रहे हैं 4.5 लाख रुपीस फॉर द फर्स्ट 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हम साइन करेंगे, तो ये 4.5 लाख का कोई एक टाइम फ्रेम है, कोई टाइमलाइन है, या फिर ये 5 साल के एग्रीमेंट में कंटिन्यूस रहेगा? गौरव जी, ये ना एमजी देने की मेरे को नौबत कहीं नहीं आने वाली। अच्छा, मतलब जहां भी रहेगा वो इससे ज्यादा ही बिजनेस होना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इसलिए हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को हम बोल सकते हैं वी कैन ट्रांसलेट दिस कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, ये सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए है जो मैंने एमजी वाला क्लॉज दिया है। अदरवाइज इसमें एमजी जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि एक केन अगर एक मशीन पे हम लोग मानते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 15 मशीन का मतलब 15 केस होगी ना डेली का, राइट? तो दैट मींस कि सीधे सीधे उनका 3000 का एटलीस्ट हो गया उनका पर डे का। तो 9 लाख का तो बिजनेस ऐसे ही है, तो 4.5 लाख का तो 50% है उसका। गॉट इट। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा कि जितने भी हमारे पास इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम 5 लाख रुपीस चार्ज करेंगे, उनके साथ एक एलओआई साइन करेंगे, और जनवरी से हमारे हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस 3 months gap counting is basically to set up the retail network territories where we will get the initial। जी,
for your mask outside. So we have more or less every question answered. अंकुर तिवारी जी का क्वेश्चन था कि स्प्लिट ऑफ 30 lakhs. आई थिंक अंकुर जी आपको क्लैरिटी मिल गया है कि 3 लाख रुपीस फ्रेंचाइज फीस है, 27 लाख रुपीस आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है. सर ज्ञानेंद्र जी का एक क्वेश्चन है कि इज देयर एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द FSSAI, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट? यागवेंद्र जी. जी जी इसमें गौरव जी. कोई FSSAI लाइसेंस लेना रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर को अपने एंड पे? डिस्ट्रीब्यूटर को. हाँ जी. फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, FSSAI लाइसेंस हाँ लेना जी, पड़ेगा, FSI लेना पड़ेगा जी. GST भी लेना पड़ेगा. हाँ, GST भी लेना पड़ेगा सर. ठीक है. इसमें आप ब्रॉडली एक बार बता सकते हैं कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने रहेंगे पर मंथ के, क्योंकि हमने बात करी कि 7 to 9 lakhs का हमारा एक बिजनेस एक्सपेक्टेड है विद दिस 30 lakhs इन्वेस्टमेंट. 7 to 9 lakhs का हमारा सेल्स एक्सपेक्टेड है और उसमें 1,40,000 से 1,80,000 पर मंथ की इनकम अपॉर्चुनिटी है. इसमें कितना ऑपरेशनल एक्सपेंस आएगा सर? इसमें जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है मैक्स टू मैक्स 30 to 40,000 सारे एक्सपेंसेस मिला के आएंगे. ठीक है. उससे ऊपर उसमें एक्सपेंस आ ही नहीं सकता है. थोड़ा सा आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं सर कि ये कौन कौन से एक्सपेंसेस रहेंगे जो 40,000 में हम काउंट कर रहे हैं? हाँ सर, 600 स्क्वायर फीट की जगह का अगर मैं किराया की बात करूं तो कहीं पर भी आपको 10 से 15,000 में 600 स्क्वायर फीट मिल जाता है. 10-15,000 का एक लड़का चाहिए तो टोटल मिला के 30,000 रुपये हो गया. और इसमें जो एक्सपेंस आता है जो आउटवर्ड में फ्रेट में है वो मतलब सारा जो टोटल मैं बिजनेस की बात करूं अगर 15 मशीन को हमने फीड किया तो भी किसी भी हालत में 5 से 7,000 रुपए से ऊपर आता नहीं. ठीक है. तो मैं तो 10,000 फिर भी उसका मान के चल रहा हूँ कि भाई चलो 30-40,000 40-45,000 में उनका पूरा एक्सपेंस हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स. ओके ओके. अंकुर जी का क्वेश्चन है 27 लाख रुपीस रिफंडेबल सिक्योरिटी फॉर व्हाट? तो अंकुर जी उसके लिए यागवेंद्र जी ने बताया था, मैं आई रीआइटरेट इट फॉर यू. ये 27 लाख रुपीस आप जो मशीनरी आपके थ्रू आगे जो रिटेलर के पास लीज डिपॉजिट पे जा रही है उस लीज के लिए ये बेसिकली आपसे एक सिक्योरिटी ले रहे हैं क्योंकि ओवरऑल बिजनेस वो आपके थ्रू होगा. तो अंकुर, since we are paying security deposit to the company, do the distribution will also charge refundable security deposit from retailers? तो अमित जी का ये क्वेश्चन है कि सपोज आप 27 लाख रुपीस लेके आगे रिटेलर को ये मशीन दोगे एट अ नॉमिनल कॉस्ट रिफंडेबल या फिर फ्री में, तो अगर वो रिफंडेबल कोई सिक्योरिटी वो उनसे चार्ज करना चाहे डिस्ट्रीब्यूटर तो वो कर सकता है? सर वो सिक्योरिटी अगर हम लेंगे मशीन के अगेंस्ट में तो डिस्ट्रीब्यूटर ही लेंगे, हम नहीं लेंगे उस प्रॉपर्टी से कोई भी सिक्योरिटी. डिस्ट्रीब्यूटर ही लेंगे. हाँ जी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक उनको मिल गया है अंकुर जी को. और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं. अंकुर जी का कहना है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें अंकुर जी आप इन्वेस्टमेंट को कम भी कर सकते हैं. जैसा कि यागवेंद्र जी ने बोला जितनी मशीन्स आप लेंगे उतने ही आपके बेसिकली जो है आप रिटेलर्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि टोटल 15 मशीन्स आपको मिल रही हैं, 15 रिटेलर्स तक आप उनको दोगे विद एवरी रिटेलर टेकिंग 1 मशीन ईच ऑन एन असम्पशन बेसिस. तो इसीलिए आप जितनी मशीन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतनी मशीन से आप बेसिकली इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं. Is there anything that we are still unanswered? आई थिंक गौरव जी हो चुका है. हाँ जी. और फिर भी कोई क्वेरीज आएंगी तो हाँ मैं आप लोगों के टच में रहूंगा. Anji, I understand you are at the airport, must be leaving. May I quickly, friends, just for the interest of everyone, because I understand there have been a lot of questions which remain unanswered or might not be very clear. This is a distribution model we're talking about. The total investment is 30 odd lakhs. Against the investment of 30 lakhs, the distributor will get the machine. So the entire inventory would be in possession of the distributor. One. Second, this is not sale of machine. This is the inventory or the asset that you have given security against will sit in the books of the company, which is London Slush. So as a distributor and along with the support of the company, all these machines would be deployed at various outlets. So ये point of sales होगा हर एक outlet पे, और जो आपका revenue source
होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर सोल्ड एट दैट आउटलेट उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. So, and that is very broadly on the business model. And all of you who would want to maybe discuss one-to-one, kaun si location, cities, and maybe on your profile also, because people who come with distribution profile or have experience, especially in the F&B sector, might be someone who are relevant, so to say. But having said that, the company, as Yagavindra ji mentioned, will support in getting and deploying these machines on point of sales. So we have, friends, 9th of October, that's a discovery day that we are planning. 9th is Saturday that we are planning a discovery day. And all of you who would want to explore further can reach out on the hotline number or even email it to us. At the same time, our teams will also connect with you and fix up a time either for a one-to-one meeting or on a telephonic virtual meeting that can happen. But I would recommend all of you who are from Delhi NCR ideally should come to the office, experience the product, see the product, and that is something that will really help you in taking a decision. So Yagavindra ji, since we come close to our session, I would request कोई भी एक closing remark आप सारे audience को देना चाहते हैं, या further if you want to summarize anything beyond which I might have not covered, you want to do that, please go ahead. You're on mute. Sir, mute. यागविंदर जी आप म्यूट पे. हाँ जी, आ रही है आवाज? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे हैं. इसमें रिटेल मार्जिन बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत कंपटीशन और बहुत कंपनीज आ जाएंगी, आई एम डैम श्योर. तो अभी ये 2-3 साल जो भी हम लोगों को मिल रहे हैं पेनिट्रेशन के लिए, इसमें जो भी हम लोग टीम बिल्डिंग करेंगे, जो भी हम लोगों के साथ रहेंगे, हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें रिटेल मार्जिन बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी की सारी चीज़ें हैं. तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ को जितनी जल्दी हम लोग इनिशिएट कर पाएँ और जितना अच्छी तरीके से कर पाएँ, उतना हम लोग जल्दी पेनिट्रेट कर पाएंगे पैन इंडिया. तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्लीज़ जो भी कंसर्न में आपके पर्सन से फ्रेंचाइजी इंडिया में उनसे बात करें और एक बार एक्सप्लोर करें. ये फ्यूचर है बेवरेजेस इंडस्ट्री का. एक बार इसमें जो भी हम लोग जुड़ेंगे तो बहुत लंबे टाइम के लिए इसमें काम करने वाले हैं. थैंक यू. Thank you so much, Yagavindra ji. And Ashna, can I request you to kindly take it up from here, please? Sure. So thank you so much, Yagavindra ji. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks, Gaurav, for being here, presented the distribution model to all our audience. Thank you so much, audience, for registration, attending the webinar, sharing your queries. Please book your slot with us at our business hotline number, which is 9717683838. Also share your suggestion, feedback with us at our business hotline number, or write to us at feedback@franchiseindia.in. Also, you want to get more expert advice, more inputs, more industry insights, just join Gaurav sir and Sonia ma'am at their LinkedIn IDs. Information we have just shared on the screen. And tomorrow, under our business opportunity with Chai webinar series, we are inviting you to join us for Kadak House, the brand which comes from Hyderabad, and they will be talking about this particular business opportunity with you tomorrow. So that you can start this particular business with an investment of 7 lakh rupees. Thank you once again for joining in today. Have a great day. Thank you so much.